Namaste. Hello everyone, this is your coach Malcolm and welcome back to another video on your YouTube channel Malcolm's Fitness Garage. Today's topic, before I start today's topic, I would like to inform something to everybody. I got a lot of emails from people. I won't disclose any names, but asking me for a anabolic steroid cycle. Guys, I would like to inform each and every one of you that I do not do anabolic steroids. I do not take them, I do not recommend them, I do not give or advise people to take them, okay? I do not know how that cycle works. It's a completely different science, okay, which I do not want to get into, alright? So please, humble request that do not ask me such questions because I am not the correct person for this. You want to transform your body naturally, okay, with the essential supplements that your body needs or you need. With that, I can help you out with a body transformation, a good body transformation. But other than that, if you want a quick result, if you want a quick fix, then steroids might be the answer, but I do not know anything about them. So please do not ask me such questions. If you'll have any kind of questions for me related to my videos, related to my training, related to my exercises that I show, please feel free to email me, comment or DM me. I will definitely help you out. Alright? Steroids के बारे में मुझे कोई knowledge नहीं है, ठीक है? Steroids एक ऐसी चीज़ है जो बहुत अलग है सबसे. तो steroids के लिए मैं कुछ नहीं जानता, कुछ बोलूँगा भी नहीं. और अगर आपको steroids यूज़ करके बॉडी बनानी है तो मुझे कांटेक्ट मत कीजिए प्लीज. ऑलराइट, नाउ today's topic is how to use the strength bands and the exercise tube for working out the chest muscle. Okay, now I'm going to show you all the variations that you need to know, okay, to work out on your pectoralis muscle. Now I'm going to use the term chest. Okay, now we have divided, okay, it's technically not divided, but we have divided into three parts: the chest, the upper chest, the middle chest and the lower chest. Now you can work all these three aspects in a different way, in a different angle. Now a lot of people comment के sir मैं chest करना चाहता हूँ लेकिन घर पे कैसे कर पाऊँगा? Can I do chest at home? क्या मैं वो केबल क्रॉसओवर फ्लाइज मार सकता हूँ? क्या मैं बेंच प्रेस मार सकता हूँ? क्या मैं घर पे सारी एक्सरसाइजेज जो मैं जिम में करता हूँ, कैन आई डू ऑल ऑफ दोज एक्सरसाइजेज इन द हाउस? हाँ, मैं कर सकता हूँ. ऑफ कोर्स जिम हैज़ अ डिफरेंट एनवायरनमेंट. जिम का वातावरण बहुत अलग होता है, जिम का फोकस बहुत अलग होता है. बट हमारी ये जो सीरीज़ है जो हम बना रहे हैं, दैट इज़ फिटनेस फ्रॉम होम. सो हम वो सारे इक्विपमेंट्स जो मैंने एक वीडियो में बताए हैं कि कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं किस प्रकार से, इज़ यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो. ओके, एंड टुडे व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू इज़ विद दोज इक्विपमेंट्स. उस इक्विपमेंट्स के साथ क्या मैं ये एक्सरसाइजेज जो हम जिम में कर सकते हैं क्या घर पे कर पाएंगे? जी हाँ, हम कर पाएंगे. ओके, सो शुरू करते हैं. लेट्स बिगिन विथ पुशअप्स. पुशअप मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है उसके लिए, सो प्लीज़ आप वो वीडियो देखें कि कौन से वेरिएशन में पुशअप्स होता है. आज हम पुशअप्स करेंगे सिर्फ चेस्ट के लिए. ऑलराइट, सो चेस्ट. नाउ आई एम गोना यूज अ स्ट्रेंथ बैंड. ओके, मैं स्ट्रेंथ बैंड यूज़ करूँगा फॉर रेजिस्टेंस या फिर मैं सिर्फ नॉर्मल पुशअप्स करूँगा. ऑलराइट, सो प्लीज़ हैव अ लुक. देखिए, मैं मेरे पैर हुक करूंगा दीवार पे ताकि स्लिप ना हो. मेरे हाथ शोल्डर विद अपार्ट और ये हुआ पुशअप्स जो हम एक बेसिक पुशअप करते हैं, फुल पुशअप जिसको बोलते हैं हम. ओके, now you can do push-ups on your knees also. I will again show it to you. I have shown this in my previous video, but मैं वापस एक बार आपको ये बताऊंगा. ठीक है, प्लीज हैव अ लुक. मैं मेरे नीज को जो ऊपर थे मैं साइड में आ जाता हूँ. ओके, मैं सिर्फ नीचे कर दूंगा, दैट्स इट. आई जस्ट ड्रॉप माई नीज डाउन. और अब मैं ये सेम फॉर्म करूंगा
सेम वेरिएशन बट इन अ डिफरेंट एंगल। हम जब नीज को नीचे करते हैं ज़मीन पर या योगा मैट पर, तो हम उसको थोड़ा इजी हो जाता है। इट्स अ बिगिनर पुशअप। जो लोग पुशअप्स कभी किया नहीं है या जो लोग पुशअप्स बहुत टाइम के बाद कर रहे हैं, उनके लिए दिस इज द बेस्ट। ओके, नाउ हम पुशअप्स खत्म कर देंगे 3 सेट्स ऑफ एटलीस्ट 10 to 15 रेपिटेशंस। अगर फर्स्ट सेट में आपने 15 रेपिटेशंस किए और आपको कुछ एडिशनल पुश की जरूरत है, नॉर्मली हम जिम में होते हैं, सो वी आइदर पुट अ प्लेट, हम प्लेट या डंबल रख देते हैं अपने बैक पर। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? स्ट्रेंथ बैंड, ये भी मैंने बताया था मेरे प्रीवियस वीडियो में, फिर भी एक बार आप चेक कर। वापस पुश अप ऑन द नीज और अ फुल पुश अप। This is a strength band level 1. I have level 2, level 3, level 4 भी मिलता है, वो भी आप ले सकते हो। और अगर आपने पुशअप पहले किया है और लेवल 1 और 2 दोनों इजी है, दोनों को जोड़ दीजिए। ओके, सो आप दोनों को जोड़ देंगे, उसको टर्न कर दीजिए ऐसे एक बार, पुट इट ऑन योर बैक, और फिर आपको जो इफेक्ट मिलेगा, नाउ दिस इज एडवांस्ड। ओके, जिन लोगों ने पुशअप किया है पहले वो ये कर सकते हैं, ठीक है। बिगिनर्स नॉर्मल पुशअप स्टार्ट कीजिए एंड आफ्टर दैट यू कैन मेक यूज ऑफ दीज स्ट्रेंथ बैंड्स। पुशअप इज अ बेस एक्सरसाइज। पुशअप ऐसी चीज है कि जो हम हर वर्कआउट के पहले करते हैं, पुशअप्स एंड पुलअप्स। ओके, नाउ पुशअप्स हमने किए 3 सेट्स 10 to 15 रेपिटेशंस। नाउ हम स्टार्ट करेंगे चेस्ट का वर्कआउट। कैन आई डू बेंच प्रेस? अगर मैं घर पे हूं तो क्या मैं बेंच प्रेस जैसा कुछ कर सकता हूं लेटे, जमीन पर लेटकर? जी हाँ, मैं कर सकता हूं। हैव अ लुक। नाउ आई एम गोना डू, ओके, ये हम टर्न कर लिए हमने। You go down. Now, अब हम इसको लेट कर, keep your head down, सर नीचे रखे, ओके। ये हम कर सकते हैं अगेन 10 to 15 रेपिटेशंस। ये हमारे चेस्ट मसल पे काम करेगा। नाउ मुझे अगर फ्लाइज करने हो तो मैं फ्लाइज कर सकता हूं। यू सी दिस, अ डंबल फ्लाई मूवमेंट, अ केबल फ्लाई मूवमेंट, जो आप करना चाहो, जो आप बोलना चाहो उसे। हियर, ओके, सो ये हमने किया बेंच प्रेस या फिर डंबल प्रेस, जो आप बोलना चाहो, जिससे आप जिम में करते हो, वो हम हमारे स्ट्रेंथ बैंड से करेंगे। ऑलराइट, अब हमें केबल क्रॉसओवर इफेक्ट चाहिए हमारे जिम में, हमारे घर पे, हमारे घर में जो हम एक्सरसाइजेस करते हैं, स्टैंडिंग प्रेस, स्टैंडिंग फ्लाइज। मेरे पास एक ये इक्विपमेंट है, दिस इज एन इक्विपमेंट विच आई कैन फिक्स। आई एम गोना मूव यू गाइज ओवर हियर, ताकि आप लोग देख पाए कि मैं क्या कर रहा हूं। इफ यू सी, देयर इज अ हार्ड सब्सटेंस ओवर हियर, कुछ हार्ड चीज है यहाँ पर। ओके, ये पार्ट दरवाजे के बाहर जाएगा। अब इसे कितना भी खींचो ये नहीं निकलेगा। ओके, सो अब मैं ये इसको अंदर यहां डालूंगा। I'll just put it right here. I'll show it to you all. ये देखिए, यहाँ पर एक
होल जैसा है जहां पर ये पूरा ट्यूब ऐसे चाला जा सकता है. हियर, दैट्स इट. सो वंस यू फिक्स दिस, इसको सेंटर पे लेके आइए. ओके, ये फिक्स हो चुका है और अब मैं इसको अटैच करूंगा. या अब इसे अटैच कर लिया. ये आपके हाइट के हिसाब से आपको एडजस्ट करना है. मेरी हाइट 5'10", 5'11" है, तो मैं उस हिसाब से एडजस्ट करूंगा जहां पर मेरे हाथ, ये जो हैंडल्स हैं वो मेरे चेस्ट के पास आएंगे. मैं थोड़ा और आगे आऊंगा. हैंड्स एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज अप ओवर हियर. यू लुक स्ट्रेट, सीधा देखिए, एंड यू प्रेस. अब मैं आपको पीछे लेके जाता हूं ताकि आप देख पाएं कि ये एक्सरसाइज कैसे हो रही है. ओके, नाउ वन लेग इन द फ्रंट. आप चाहे तो एक लेग आगे रख सकते हैं, चाहे तो दोनों पैर ऐसे रख सकते हैं. आई लीव इट टू यू. मैं हमेशा एक पैर आगे लेता हूं ताकि बैलेंस बना रहे. ओके, आई कैन मेंटेन माय बैलेंस. नाउ यू सी दिस. ओके, अब ये वेरिएशन जो हमने मिडिल चेस्ट के लिए किया, वो अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट के लिए भी हम कर सकते हैं. आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू इज, जस्ट टेक इट अप. ये देखा, मैंने इस रॉड को ऊपर ले लिया है. हैव अ लुक, मैंने इस रॉड को ऊपर ले लिया है. अब मैं इस एक्सरसाइज को सेम तरीके से दोहराऊंगा. अब मैं थोड़ा बेंड हो जाऊंगा. आई जस्ट बेंड माई सेल्फ, लुक स्ट्रेट और डाउन. ओके, अब मैंने इसको नीचे ले लिया है. या और अब मैं इसे अपनी अपर चेस्ट करूंगा. सी दिस. सो ये हो गए हमारे प्रेस मूवमेंट्स, तीनों एंगल्स में, स्ट्रेट, अप एंड डाउन. अब मैं तीनों एंगल से फ्लाइज भी कर सकता हूं. अब फ्लाइज कैसे करेंगे, पहले मैं नीचे से स्टार्ट करता हूं. हमारा ट्यूब नीचे है तो योर बैक स्ट्रेट, स्टमक इन, लुक स्ट्रेट, ब्रीद आउट एंड पुश पुश. ओके, मैं एक बार टर्न कर लेता हूं ताकि आप मेरा एल्बोज देख सके और मैं कहां तक लेके जा रहा हूं. राइट टिल हियर, ओनली टिल माय चेस्ट. ठीक है, ये सेम चीज में हम जिसे पेक फ्लाई कहते हैं, जो हम मशीन पे करते हैं यूजुअली, या हम केबल क्रॉसओवर पे करते हैं, वो हम यहां करेंगे. यू स्टैंड स्ट्रेट, यू सी दिस, स्टमक इन, पुश. पूरा पीछे तक नहीं लेके जाना है, ओनली टिल हियर, दैट्स इट. बिकॉज हम पूरा पीछे लेके जाएंगे, इफ वी टेक इट ओवर हियर, वी आर गोना टेक सपोर्ट ऑफ द शोल्डर्स टू ब्रिंग इट टिल हियर. वो हमें नहीं करना. हमें शोल्डर्स का सहारा नहीं लेना है. हम सिर्फ यहां तक जाएंगे, एल्बोस को बेंड ही रखेंगे. डोंट ड्रॉप इट डाउन अप हियर, दैट्स इट. बिकॉज हमें सिर्फ चेस्ट मसल पे काम करना है. ऑलराइट, और अब मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा. और अब मैं इसे
ये हम केबल क्रॉसओवर पे करते हैं जिम में. Here, keep your elbows, don't drop it down, okay, in line with this tube. You see this? ये जो ट्यूब मेरे एल्बोज को, फोरआर्म्स को टच कर रहा है, उसी लाइन में आपको ये लेके जाना है. That's it. पीछे तक मत लेके जाइएगा, शोल्डर्स काम नहीं करने हमें. We just need to work on our chest. So right till here, breathe out, up, breathe out, up, breathe out, up. Okay? So ये हो गए हमारे चेस्ट के एक्सरसाइजेस विद एन एक्सरसाइज ट्यूब. ऑलराइट, अब हम स्ट्रेंथ बैंड को, अभी ये इजी हो जाएगा. ये लेवल 1 है, इसका लेवल 2 भी मिलता है, लेवल 3 भी मिलता है. और अगर आप लेवल 1 और 2 और 3 तीनों को सरपास कर गए और आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स कि आप स्ट्रांग होते जा रहे हैं. सो इफ यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, यू नीड टू कीप इंक्रीजिंग वेट, जो हम जिम में करते हैं. अब यहाँ पर जिम नहीं है, सो हम क्या करेंगे, इसके साथ हम स्ट्रेंथ बैंड को इंक्लूड करेंगे. एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम, कुछ चेंजेस नहीं होगा. हम सिर्फ इसे ऐड कर रहे हैं ताकि हमें एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस मिल सके मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए. ऑलराइट, सो दीज आर ऑल द एक्सरसाइजेज. हमने 6 + 7, 8 और 9 वेरिएशंस किए चेस्ट मसल के लिए सिर्फ घर में बैठे बैठे. We've done around 8 to 9 variations of all chest exercises that we can do from these 2 tubes, okay, at the comfort of your home. So हम ये कर सकते हैं अगर हमें अच्छी चेस्ट डेवलप करनी हो तो. ठीक है, सो ये था वीडियो चेस्ट के लिए. और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम शोल्डर्स, बाइसेप और ट्राइसेप, इन तीनों को किस तरह से वर्क करेंगे इन ट्यूब्स के साथ. ऑलराइट, बट प्लीज डू नॉट फॉरगेट, भूलिएगा मत कि आपको वार्म अप करना है. 5 minutes of any form of warm up, okay, then you do your dynamic stretching. हमें डायनामिक स्ट्रेचिंग करना है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है. उसके बाद हम ये एक्सरसाइजेस करेंगे. उसके बाद हम स्टैटिक स्ट्रेचिंग करेंगे. और अगर जरूरत पड़ी, फोम रोलर्स, इसे भी यूज कर सकते हैं आप. सो इन सारी चीजों को करके एक प्रॉपर वर्कआउट बनाना है. अगर आप चाहते हैं तो 2 मसल को एक साथ जोड़ सकते हैं. यू कैन डू अ पुशिंग एंड पुलिंग मूवमेंट. एक पुशिंग मसल यूज कर सकते हैं जैसे चेस्ट, एक पुलिंग यूज कर सकते हैं जैसे बाइसेप्स. सो यू कैन हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ चेस्ट एंड बाइसेप, और यू कैन डू चेस्ट और ट्राइसेप्स अगर आपको दोनों पुशिंग मूवमेंट्स करने हैं तो. बट रिकमेंडेड थिंग इज कि आप दोनों को एक साथ करिए, चेस्ट और बाइसेप को, ताकि एक अच्छा वर्कआउट मिले आपको. ठीक है, तो एक पुशिंग, एक पुलिंग मूवमेंट हो गया. और इसे आप किस तरह से फंक्शनल ट्रेनिंग में ऐड कर सकते हैं. 1 hour of all of these exercises along with functional training to change, to transform your body is what I do for my online coaching and consultation. तो ये मैं सिखाता हूँ ऑनलाइन कोचिंग और कंसल्टेशन में कि आप इन सारी चीज़ों के साथ फंक्शनल ट्रेनिंग, स्ट्रेचिंग, वेट ट्रेनिंग, सबको मिलाकर एक अच्छी बॉडी कैसे बना सकते हो, ये मैं सिखाता हूँ मेरे ऑनलाइन कोचिंग और कंसल्टेशंस में. मैंने लिंक डाला हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको 110% जवाब दूंगा. और उसके आगे अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे लॉगिन कीजिए, DM कीजिए मुझे, and I will be very very glad and happy to answer all your questions and your queries. अगर आपका आज वीडियो आपको पसंद आया, मेरा वीडियो ये, so please do like, share, subscribe to my YouTube channel Malcolm's Fitness Garage. Please help me in transforming you. Okay, एक नया आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना हो नेचुरली. घर में बैठकर जिम जाने का टाइम नहीं है हमारे पास, हम घर में भी कर सकते हैं. That is what you need to do. Help me to help you. All right, thank you.